اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو 10th اردو کلاس. اسٹوڈینٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بچوں آج ہم یونٹ نمبر 7 چغل خور کی ریڈنگ کریں گے. تو پہلے اس کے مصنف کے تعارف پہ آئیں. پیج نمبر ہے میرے پاس 69. شفیع عقیل 1930 میں پیدا ہوئے. 2013 میں انہوں نے وفات پائی تو 83 سال ان کی عمر بنتی ہے. شفیع عقیل لاہور کے قریب واقع ایک گاؤں تھینیا میں پیدا ہوئے. پھر ان کا اسلوب سادہ اور سلیس تھا. ان کی تصانیف کی چاروں لائنز آپ نے انڈر لائن کرنی اور اس کی ڈیٹیل سے ایک بار ریڈنگ کر لینی ہے. یونٹ پہ آئیں. اس سبق میں چغل خور کے بیانات جھوٹ کی ذیل میں آتے ہیں اور یہ چغل خوری کے بجائے فتنہ پروری زیادہ ہے، یعنی اس سے فساد برپا ہوتا ہے. یہ ایک لوک کہانی ہے. لوک کہانیاں یا لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب، ان کی زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں. ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو اتا پتہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ یعنی نسل در نسل ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. ان کے ذریعے سے محبت، ایثار، خلوص ہوتی ہے. محبت اور مروت، لحاظ، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. اگلے وقتوں کی بات ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا. دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا. اس نے 12 یعنی کئی مرتبہ اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا. لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا. دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اس عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے. چنانچہ وہ بیکار تھا یعنی نکما. اس نے دوسری ملازمت کی بتیری کوشش کی یعنی بہت کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا. کچھ دن تک وہ اپنی جمع پونجی یعنی جو کچھ اس نے جمع کیا ہوا تھا گزر بسر کرتا رہا. لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو وہ بہت پریشان ہوا. اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی. سر توڑ یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا، لیکن کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے. فاقوں کی نوبت یعنی بھوکا مرنا. مختلف لوگوں سے کہا، در کی خاک چھانی یعنی ہر ایک سے پتہ کیا، ایک ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا. گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے یعنی اسے اچھی طرح جانتے تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا. آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا تو نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ کر جانا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمانی چاہیے. چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے. چلتے چلاتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا. یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی. لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں. کسان نے اس سے دریافت کیا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے. اس کو انڈر لائن کریں، یہ MCQs میں آتا ہے. یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں. اتفاق کی بات یہ کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا. اسے ایک ملازم کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے سوچا چلو اسی سے ملازم رکھ لیتا ہوں. یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا.
यही सोचकर उसने चुगलखोर से पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने पास मुलाजिम रख लूं तो तुम क्या तनख्वाह लोगे? इस पर चुगलखोर ने बड़े इत्मीनान यानी तसल्ली से जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं है। किसान को इसकी बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई कि काम करेगा और तनख्वाह नहीं लेगा, भला ये क्यों हो सकता है? उसने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? जवाब में चुगलखोर कहने लगा, आप मुझे सिर्फ रोटी और कपड़ा दे दें और इसके साथ एक बात की इजाजत दें, बस यही मेरी तनख्वाह है। इस लाइन को अंडरलाइन करें। किसान पूछने लगा, किस बात की इजाजत? चुगलखोर बोला, आप मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दे कि मैं 6 माह के बाद आपकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करूं। अंडरलाइन करें इस लाइन को भी। चुगलखोर की बात तो अपनी जगह बड़ी अजीब थी, लेकिन किसान ने अपने दिल में सोचा, मुफ्त का नौकर मिल रहा है, खाली रोटी कपड़े में क्या बुरा है? फिर उसने अपने आप को आमादा करने के लिए कहा, यानी राजी करने के लिए कहा, 6 माह बाद एक चुगली खाता है तो खा ले, मेरा क्या जाता है? ये किसी से मेरी चुगली खाकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास कौन से राज हैं? राज होते हैं भेद, जो जाहिर हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। चुनाचे चुगलखोर किसान के पास मुलाजिम हो गया। वो काम भी उसी का करता था और उसी के घर में रहता भी था। रोजाना सुबह सवेरे किसान के साथ खेतों में चला जाता, बैलों के लिए चारा काटता, हल चलाता, अगाई करता और इस तरह काम में किसान का बराबर का हाथ बटाता था। दिन गुजरते गए और किसान को ये बात भी भूल गई कि 6 माह के बाद चुगलखोर ने एक चुगली खाने की इजाजत मांगी थी। उसने चुगली खाने की इजाजत दी थी। किसान इस अरसे में ये तमाम बातें भूल चुका था। इधर चुगलखोर को किसान के यहाँ मुलाजिम हुए 6 माह बीत चुके थे, गुजर चुके थे। अब उसका दिल चाह रहा था कि किसी से किसान की चुगली खाए। वो 6 माह से अब तक अपनी इस आदत पर जबर किए हुए था, यानी उस पर उसको दबाए हुए था, मगर अब मुआदे की मुद्दत यानी अरसा खत्म होने पर अपने आप पर काबू पाना उसके बस में ना था। चुनाचे जब वो अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हो गया तो उसने सोचा, अब चाहे कुछ हो, मैं किसान की चुगली जरूर खाऊंगा और अब तो मुआदे के मुताबिक मेरा हक भी है। एक रोज किसान हस्बे मामूल यानी मामूल के मुताबिक अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ी हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, जरूर कहो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? चुगलखोर और भी ज्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है, यानी नेकी है। ये सुनकर किसान की बीवी को कुछ वहम सा हो गया, वहम शक। उसने दिल में सोचा, हो ना हो कोई खास बात जरूर है। यही ख्याल करके कहने लगी, तो फिर तो जरूर कहो, वो बात क्या बात है? जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज यानी भेद से बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया। इसको अंडरलाइन करे। उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाई रखी है, कोढ़ी हो गया है। बीवी किसान की बीवी ने चौंक कर पूछा, चिल्ला कर। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई। ये बात उसके लिए जिस कदर नहीं थी, इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन भी थी। चुगलखोर ने जब अपना तीर निशाने पर बैठता देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला इसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है? लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आजमाऊं? चुगलखोर झट से कहने लगा, फौरन से, इसमें क्या मुश्किल है? फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कोढ़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। तो अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं, तो किसान के जिस्म को जमीन से चाट कर देख जुबान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर जरूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चला था, जहां किसान पहले ही खेती बाड़ी कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों में ही रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास
पहुंचा और इसे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम कर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ, उसने ताज्जुब से पूछा, तो ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाती हुई कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सारा काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है, हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह के शशोपंज यानी सोच विचार में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें ये मेरी बात यकीन नहीं आती तो कल जब वो खाना लेके आएगी तो उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों में ही रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूंगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया तो किसान उसकी बातों में आ गया। वहां से चला आया और किसान के सालों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग जहाँ मजे कर रहे हो वहां तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज मार मार कर अधमोया कर देता है, यानी मरने के करीब, और वो उसे इस जुल्माना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की बात सुनी तो बहुत परेशान हुई, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना इससे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, निढाल। खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है, लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर ले? इस पर चुगलखोर झट से बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिल मिलाने लगी, बेचैन हो गए। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुप कर ये सब आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत हुआ, सीधा किसान के भाइयों के पास गया और उनसे जाकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो, फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने उससे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ? तुम क्या कह रहे हो? हम किसकी मदद नहीं करते? इस पर चुगलखोर ने रोंसा सा मुंह यानी रोनी शक्ल बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर चौथे रोज आकर उसे जद को करते हैं, यानी मारना पीटना, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान होने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कभी नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी में ये बेइज्जती बर्दाश्त करता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल दोपहर आकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना, किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई भी गुस्से में आ गए। अब हुआ क्या, इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आकर अपने काम काज में मसरूफ हो गया। किसी को कानो कान इस बात की खबर न हुई, कुछ पता न चलना। अब दूसरे रोज जब बीवी उसकी खाना लेके आई कंखियों से यानी चोर नजरों से, तो उसने जैसे ही खाना उसके करीब रखा और उसने जैसे छाछ का मटका किसान पकड़ने, छाछ कहते हैं लस्सी को, रोटियों की चंगेरी यानी छाबा जो है जमीन पर रख बैठी। किसान जल्दी से जैसे ही उसने पीछे हट गया, ये देखकर उसकी बीवी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के लिए आगे सिरा खाई यानी खिस्सा खाई। रोटी पकड़ने के लिए किसान ने हाथ बढ़ाया, झपट कर उसकी कलाई पकड़ ली फौरन ही। इस पर किसान ने उसे मारना शुरू कर दिया। फिर उसके साले भी आ गया, उसकी बीवी भी आ गई, ठुकाई की यानी मार पीट हुई, और उसके किसान के भाई भी फिर आपस में आ गए, गुस्से में एक दूसरे को मारने लगे, और इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पिलट पड़े यानी मारने लगे। सर पटोल हुआ, खूब मारा पीटा, और आखिर में जब बच बचाओ इर्द गिर्द के लोगों ने किया तो नौकर, इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि नौकर हमारे पास आया और बात की। वो सब चुगलखोर का किया जा रहा है, सारे के सारे मिलकर उसको तलाश करने लगे, लेकिन वो गांव छोड़कर जा चुका था। कहते हैं वो दिन आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता ना चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर है कि अगर उसने तस्लीम कर लिया तो चुगलखोर है, तो किसान इसके साले भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हर चुगलखोर चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। बच्चे इसका सवाल नंबर 3, 4, 5 ये जो है ये आपका
ہوم ورک ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر ہی کرنا ہے. یہاں تک ہمارا آج کا کام مکمل ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ